आपको मैं बता Right. दूं, भगत सिंह को जिसने पकड़वाया था वो भी भारतीय था। और जो जज, जिसको बाद में चेंज भी किया गया, जिसने सबसे पहले बोला कि इसको फांसी होनी चाहिए, वो भी भारतीय था, इंडियन था। Okay. 95% ऑफ द इंडियन सोसाइटी इट वॉज कंप्लेसेंट विद द ब्रिटिश रूल। ये प्रवृत्ति भारतीयों में नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए हम देखते Oh. हैं कि जो हमारा नेता है हमने एक्सेप्ट कर लिया, अरे करप्ट है तो क्या, हमारा काम तो बन रहा है। इससे करे, ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, इवन दो मेरा मेरा जो एग्जाम था एमबीए का, मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, उसका भी पेपर कोई वेंडर चेक कर रहा है, मतलब प्राइवेट वेंडर चेक कर रहा है। ये राइट। क्योंकि जितना देश हमारा बड़ा है, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है हम हर किसी के लिए रोड बनाए, हम हर किसी के घर तक पानी पहुंचाए। ये बेसिकली गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस नहीं है, तो देन कन्विक्ट होता था। नाउ विद प्रॉब्लम विद द करंट गवर्नमेंट इज कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। Thank you, guys. Now we have a house full room, and just I'll start the conversation. I will introduce first because Partha and Avinash know each other, and I know Partha, but Pratham is very new to all to this room. So this is my friend Pratham, and we were friends from 8th standard together, and we both have that ideology from 8th standard. So now, like, he is working in Axis Bank at very nice position, holding very nice stakeholders, and अभी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. And Pratham, this is Partha, my senior in hostel, and very enthusiastic energy. And first time where we met, I'll tell you all, guys. Partha and me met at an startup competition where Partha is also pitching and we are also pitching at that time. Yes. अविनाश जज जज कर रहा है मेरे को। No, 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 no. So, yes. And yes, so this is how we met each other in SIPS. Pratham has traveled a lot and he has joined this meeting just to get complete our first video. Uh, from us is an YouTube channel, an initiative that I had taken with Partha and Pratham because we were like हम एक दूसरे के साथ एक करंट अफेयर्स पे बातें करते थे बेस्ड ऑन लाइक ट्वीट व्हाट्सएप ऑन कॉल. सो मैंने सोचा था कि व्हाई डोंट वी हैव दिस आवर ओन ओपिनियंस टू इन अ कंसोलिडेट वीडियो एंड दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन यूट्यूब where not many of them but few could able to get something learnings that we had been researching on that current topic. So just and start, Avinash, I'm so glad to have you. It's an unexpected that I think we had planned for only three, but it's cherry on cake now. You have with us now. Okay. So I hope I'm Yes, audible yes. clear. So it's just a normal Yes, talk, yes, yes. whatever thing that you have in mind on the current affairs and the topics that currently ongoing in India, outside India, and you guys hold a very lot of experience in politics and also some political science. Partha is Pratham. I told you, I guess Partha has conducted BMC elections and he is working as a political consultant to I a foreign supported a BJP. देखा party. या you have, yeah, you told me about Yes, it. yes, yes, कितना बढ़िया। yes, So yes. I mean, I think I should start because I have some certain insights हाँ, about all this. Yeah, yes, yes. go ahead. तो हिंदी में बोलना है, राइट? हाँ, He's हिंदी part-time इंग्लिश. IT sales agent. And one हाँ. more thing, Partha is also an UPSC aspirant. Ali Pratham, who conduct all the exams of UPSC and MPSC in Alibag, and he is that guy who manage everything there.
from the venue to up till the scrutiny and everything. So he had a very great team with him. To I I guess Pratham will share more on this, right? Pratham. Yeah. Hmm. Totally understand. How old is Pratham, if I may ask? Yeah, I'm 25. Okay, so we are roughly the same age. Avinash is also 24, 25. Yes, I'm yes, yes. 26. Yes. Hmm. Shubham, I mean, sorry. Soham might be 24. So yes. Okay. So let's start. Right. Partha, you go ahead. Have take that first ठीक है. chance. How you can start? Yeah. हम्म. तो पता है सोहम भाई, हमने ना जब ये पॉडकास्ट हमने सोचा ना कैसा Hmm. करते हैं, तो ना मुझे अभी Hmm. ऐसा लगा कि सेम वही चीजों पे बात करेंगे, करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, बट नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो प्लेटफॉर्म है हमको यूज करना चाहिए कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज एड्रेस Yes. करने के लिए जो हमारे देश में. Yes. तो पता है भाई, हम ना सब सोचते हैं कि भाई ये सरकार आएगी वो होगा, ये सरकार आएगी ये होगा, ये सरकार ने ऐसा बोला, वो सरकार ने ऐसा बोला. Hmm. रियलिटी पता है क्या है सोहम भाई? Hmm. जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो हमारे समाज का एक दर्पण होते हैं. दे आर जस्ट Hmm. अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लार्जर सोसाइटी. और ये जब मैं पॉलिटिकल फील्ड में काम करता, मैंने बहुत देखा है. मतलब मैंने Hmm. उसी फील्ड में अभी बीएमसी में गया ना, कि जो Hmm. समाज एट लार्ज सोच रहा है ना, वही वो पॉलिटिशियन उसको एक्सप्लॉइट करता है. हम जज करते हैं Right. पॉलिटिशियन को, अरे हिंदू मुस्लिम कर रहा है, अरे जात पात कर रहा है. पर अगर वो हिंदू Right. मुस्लिम करके और जात पात करके वो जीत रहा है, इसका मतलब सोसाइटी जो है उसको ये पसंद आ रहा है, इसलिए उसको इलेक्ट कर रही है ना. वी जज द Exactly. पॉलिटिशियन बट वी डू नॉट जज द सोसाइटी एज अ होल. तो मैंने ना थोड़ा Right. रिसर्च किया. मेरे पे 2 रिसर्च आर्टिकल है, पब्लिश नहीं हुए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे से पब्लिश करूँ उनको. मैंने ना एनालाइज किया कि कब से चालू है. Hmm. सोहम भाई, ये शायद हो सकता है बुरा लगे पॉडकास्ट के व्यूअर्स को भी और हम में से किसी को भी, No. बट जो हमारी भारतीयों की प्रवृत्ति रही है ना भाई, वो ना Hmm. हमेशा मतलब एट लार्ज लार्ज सोसाइटी की ना गुलामी की रही है. आपको मैं बता Right. दूं, भगत सिंह को जिसने पकड़वाया था वो भी भारतीय था. और जो जज, जिसको Oh. बाद में चेंज भी किया गया, जिसने सबसे पहले बोला कि इसको फांसी होनी चाहिए, वो भी भारतीय था, इंडियन था. Okay. 95% of the Indian society, it was complacent with the British rule. They did not want anything to do with the British rule. मतलब Right. उनको कुछ करना है, वो इंडिफरेंट, टैक्स दे रहे थे, अपनी जिंदगी काट रहे थे. और जो एवरेज इंडियन की सोच थी वो ये थी कि अरे मैं और मेरा परिवार, मैं क्यों मरूं बाकी लोगों के लिए. हाँ, ऑफ कोर्स एक्सेप्शन थे, Right. भगत सिंह वगैरह जैसे. हाँ, पर ये लार्जर इंडियन सोसाइटी की थिंकिंग तब से चालू है. अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब इंडिपेंडेंस आ गया, जब आजादी Hmm. आ गई, जब रिपब्लिक हो गए हम, जब पॉलिटिकल ये बन गई, तो भले ही हम इंडिपेंडेंट हो गए कुछ लोगों के एफर्ट्स की वजह से, पर वो सोच कंटिन्यू रही. अरे हमको एक Right. सिक्योरिटी चाहिए, हमको एक सेफ्टी चाहिए. तो इस कंप्लेसेंसी में, इस एनवायरनमेंट में देखो, अगर कोई कंप्लेसेंट हो जाता है ना कोई समाज, वो ग्रो नहीं कर पाता. जैसे रशिया को फ्रांस एक बार कैप्चर करने आया था, एक बार कॉन्कर करने आया था. और सॉरी सॉरी, वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, जब जर्मनी ने Hmm. हमला बोला था रशिया पे. रशियंस का ऐसा था कि उनके पे ना कोई इंडस्ट्रियल पावर इतनी नहीं थी वो उस समय. उनका Hmm. ऐसा, और जर्मनी टॉप वर्ल्ड पावर थी, वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड पावर्स व्हेन इट केम टू मैन्युफैक्चरिंग. तो ऐसा हो रहा था कि जर्मनी का एक टैंक रशिया के 10 टैंक उड़ा रहा था. पर रशियन लोगों ने हार नहीं मानी. रशियन लोगों ने क्या किया, ठीक है हम अपनी जितनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है सब इसमें डाल देंगे, भले ही लोग 2 टाइम की रोटी ही मिले, बस बाकी सारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इसमें डालेंगे. और जो आम लोग थे, जब जर्मन Hmm. उनके टाउन्स में आ रहे थे, जब जर्मनी के सोल्जर, तो आम लोग जो भी क्रूड वेपन उनको मिल रहे थे, तलवार भाला कुछ भी, गन के सामने वो जाके लड़ रहे थे. ये प्रवृत्ति भारतीयों में नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली. इसीलिए हम देखते Oh. हैं कि जो हमारा नेता है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अरे करप्ट है तो क्या, हमारा काम तो बन रहा है. अरे मेरे Right. को उसने हमारी सोसाइटी में वॉल तो बना के दे ली, अरे मेरे को 4,000 रुपए तो दे रहा है वोट करने के, मैं क्या करूं, भाड़ में जाए देश. तो आपको समझना होगा, जो हमारी जो कंप्लेसेंसी की प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चरल है. हम मतलब ना, हम Exactly. जैसे हम यूथ है, हम लोग बोल सकते हैं कि क्यों 4,000 रुपए नहीं लेंगे, बिल्कुल. पर आप समझो कि हम जैसे लोग एक स्मॉल माइनॉरिटी है इस पूरे बड़े देश की. और आप देश समझो कितना बड़ा है ये. अगर हमने 76.3% पॉपुलेशन भी उड़ा दी इस देश की, निकाल दी, Hmm. तो भी हम बाय पॉपुलेशन वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंट्री रहेंगे आफ्टर चाइना. इतने हम लोग Oh. हैं. तो Right. मोस्ट हमारे जो लोग हैं वो खुश है 2 टाइम की रोटी मिलके, दारू मिलके, और 4,000 रुपए मिलके एक टाइम की वोटिंग के. तो समाज को चेंज होने में भाई बहुत टाइम लगेगा. मतलब मैं ऐसा समझता हूँ जैसे Hmm. रेनेसांस हुआ था यूरोप में, Hmm. वही होगा तो ही हमारा समाज चेंज
हो पाएगा, अन्यथा हम वही पहले तो करप्ट लीडर्स को चुनेंगे, जो हमको फायदा होता है वो देखेंगे, सुपर राइट स्टेशन में हम लोग ये रहेंगे, और ऐसे फालतू नेता आते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ना, एक माइंडसेट चेंज के लिए ना, जैसे हम लोग ये कर रहे हैं, वैसे ना और भी यूथ को निकलना चाहिए, ताकि और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, बट इट विल टेक टाइम। तो ये मेरा स्टार्टिंग ओपिनियन है। बाद में लेट्स टॉक मोर। आई थिंक वी शुड लेट अदर पीपल टॉक टू। एग्जैक्टली मीन्स really Pratham, can you comment on this? Yeah, it's really present Pratham very या माइंडसेट जो पहले से बना है वो वैसा स्ट्रक्चर वैसा ही रह गया, वो कभी बढ़ा नहीं ना, उसे कोई किसी ने इनिशिएटिव लिया नहीं कि उसे चेंज किया जाए। ठीक है। और रही बात अभी करंट सिनेरियो की, यहाँ पे कैसे हो रहा है कि गवर्नमेंट अपने से ज्यादा मतलब वेंडर्स को दे रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। जैसे कि अभी मैं एसएससी करता हूँ या एमपीएससी एमपीएससी ये करता हूँ, यूपीएससी करता हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर प्राइवेट वेंडर से यहाँ पे एज अ ये करता हूँ, वर्क करता हूँ। ठीक है। तो इनके पास इतना, गवर्नमेंट के पास उतना टाइम है नहीं कि खुद कुछ अपने वो वर्किंग इससे करे, ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ठीक है। इवन दो मेरा मेरा जो एग्जाम था एमबीए का, मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, उसका भी पेपर कोई वेंडर चेक कर रहा है, मतलब प्राइवेट वेंडर चेक कर रहा है। मुझे फेल किया गया था मेरे सब्जेक्ट में, उसके लिए मैं फाइट किया, पेपर रिवैल्यूएशन में डाला, फोटोकॉपी रेज किया, फिर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को मिला। इन दिस बिटवीन मेरा एडमिशन का डेट भी निकल रहा था। इन दिस प्रोसेस, अगर मेरा डेट है 30 और अगर मेरा रिजल्ट लगने वाला है आफ्टर 30 ऑफ, तो मेरा वो रिजल्ट लेके कुछ फायदा नहीं है। इजंट दैट सो? क्योंकि डेट निकल गया, अभी तुम बाद में रिजल्ट लगाओगे तो मुझे उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो मैंने बहुत आगे ऊपर तक थोड़ा फाइट किया। देन उन्होंने बहुत ही जल्दी मेरा, सिर्फ मेरा जब भी लिस्ट लगता है रिवॉल्यूशन का, जो भी बच्चे हैं 500 600 700 बच्चे हैं या फिर 6000 बच्चे हैं, उनका वन टाइम लगता है, वन एक ही बार में। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट रहेगा, अभी भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे रहेगा, मेरे अकेले का वो दिन पे लगाया था रिजल्ट। ओके। actually अकेले का लगाया था। उसी दिन 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे यूनिवर्सिटी निकल गया, और 7 बजे में कॉलेज में जाके मैंने एडमिशन लिया ऑन दैट बेसिस। अगर ये सब मैं नहीं, अगर कोई तुम मतलब वो वेंडर से फोटो मांग रहे हैं, फिर वो चेक कर रहे हैं, फिर वो प्रोसेस हो रहा है, तो कैसी चीजें होगी। आई नो हम खुद ये किसी प्रॉब्लम पे, है गवर्नमेंट कुछ अपने इस पे खुद से कुछ कर ही नहीं रहा है। जो भी अगर उन पे कुछ आता है वो प्राइवेटाइज करते, किसी वेंडर को देते, फिर वेंडर वो काम करते। दैट्स हाउ इट्स वर्किंग राइट नाउ। आपका पेपर या ऑनलाइन हुआ था क्या? मतलब वो सीबीटी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, रिटर्न रिटर्न पेपर। अच्छा, रिटर्न पेपर। ओके। लाइक तो ये द थिंक वे करो कि हाँ यस प्रथम थिंक यस ये थिंक ये करना है कि अगर मैं रिटर्न पेपर लिख रहा हूँ, उसमें अगर मैं अच्छा कुछ लिख रहा हूँ, मेरे फोटो पेपर मुझे शो कर रहा है कि मैंने वॉट एवर आई हैव रिटन दैट इज सफिशिएंट टू गेट क्वालिफाई और हैविंग गुड मार्क्स। बट स्टिल द हु इज गोइंग टू बी चेक पेपर और एनीथिंग एल्स, दैट पर्सन डजंट नो हम क्या मार्क्स दे रहे, क्या कर रहे। अगर मैं आवाज उठा रहा हूँ, तो अगर आवाज उठा रहा हूँ तब मेरे जाके मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अगर कोई जाता नहीं है, आवाज फेस नहीं करता है, तो किसी कोई पुअर पर्सन है, फिर कोई भी वेल एजुकेटेड है, हाउ उसको कैसे जमता रहेगा एक्चुअली कि वो वहां जाके ये करे। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम मतलब है पारदा सीन यू कैन टेक अ वेरी गुड एग्जांपल फ्रॉम प्रथम सिनेरियो अभी आपने जैसे बोला कि गवर्नमेंट का लोगों का जो परसेप्शन है टुवर्ड्स गवर्नमेंट ये ऐसा हो गया है कि पैसे देके ही दे डोंट हैव एनी दैट mindset to see an political leader through an agenda, through an its its background और कोई भी उसका जो टेस्टिमोनियल्स है उसके और आप जो बनाते हो क्या उसका पॉलिटिकल एजेंडा रहता है हर एक पॉलिटिकल का उसका कुछ लेना देना नहीं है लोगों को विद एन पॉलिटिकल लीडर और इससे क्या होता है व्हेन पीपल लूज इंटरेस्ट इन दी
politics, to the origin of the politics, then privatization, these types of cases occurs. मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि if you can see, people don't have that direct connection with politics or the administrator they elect. Okay, इससे क्या होता है? इससे ऐसा, मुझे ऐसा मेरा ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को बाद में प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनके नेता खुद वो काम नहीं कर रहे। प्रथम के केस में एजुकेशन सिस्टम में वो एक लूप होल था कि एक बंदा फेल हो रहा है, लेकिन उसका फेल हुआ हुआ पेपर चेक नहीं हो रहा until and unless up to the deadline of that admission। कोई बंदा लास्ट ईयर में फेल हो रहा है ग्रेजुएशन के, और पोस्ट ग्रेजुएशन की एडमिशन डेट आ रही है, और उसका ग्रेजुएशन का पेपर फेल हुआ, वो अभी तक चेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को मिस आउट किया है, इसके लिए बीच में प्राइवेटाइजेशन लाया टू चेक दोस पेपर्स। सेम conditions happen in Pune University. So privatization not only embedded in healthcare, it embedded in the tender system, it embedded in the government, those sectors where things can be controlled by government. You can see a very good example with BSNL के साथ क्या हुआ, आप देख सकते हो in the India. So we can take a very good example from Pratham's scenario. And yeah, I would like Avinash to have a point on this. Yeah. यस, जो प्रथम के साथ जो हुआ, बट दैट इज कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि ऑप्टिमाइज कर रही है? बिकॉज सी उसका बहुत बेसिक रीजन है कि रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं एंड द वे द पॉपुलेशन हमारी कंट्री की जो है, तो गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्कुल ही मतलब सबके लिए एक रैशनल सॉल्यूशन लेके आए। जैसे मैं खड़ा होता हूँ कि मुझे मेरे घर के सामने सड़क साफ चाहिए, तो गवर्नमेंट कैन डू कि वो गाड़ी भेज के मेरे घर के सामने साफ करे, बट गवर्नमेंट कैनॉट क्लीन द होल सिटी इन वन डे, नाइदर इन वन मंथ एंड नाइदर इन वन ईयर। दैट्स द रियलिटी। ये क्योंकि जितना देश हमारा बड़ा है, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है हम हर किसी के लिए रोड बनाए, हम हर किसी के घर तक पानी पहुंचाए। ये बेसिकली गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस नहीं है। तो व्हाट इज गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन थर्ड पार्टी? व्हाई दे आर डूइंग दिस? क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन कहीं पे तो करना पड़ेगा, दैट बिकॉज कि आप कहीं से तो भी रिड्यूस करके लाओगे तो आप उस सप्लाई को कहीं पे तो भी पूरा कर पाओगे। दैट इज द केस कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट क्यों जा रही। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात ने जो पहले जो सवाल उठा है कि व्हाई द पीपल आर लाइक दिस वे, कि जो 4,000 लेके वोट दे रहे, बिकॉज बट मैं पूछना चाहूंगा कि ये लोग कौन है? मतलब हम तो नहीं है, जैसे हम चारों बैठे, हम में से किसी ने आज तक कभी 4,000 5,000 लिए हो? या द मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वी नो जो हमारे साथ पढ़े हैं कॉलेज में, जो ग्रेजुएट हुए, द एजुकेटेड पीपल, I think most of 99% of those people will not take any money to cast their vote. They will cast their vote independently on solely based on their wisdom. तो ऐसा क्यों है? Because we are educated. And who are these people who are giving vote on based of 4,000? और एक जैसे बोला कि दारू पीने में ही लोग है बिल्कुल, वो सब। तो ये क्यों है कि एजुकेशन नहीं है द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई थिंक जो हम उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए इज बेसिकली एजुकेशन। कि इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड इन सेंस कि हमें पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारे राइट्स के बारे में नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि पॉलिटिशियन एक्चुअल में हमारी सेवा के लिए है, ये हमें नहीं पता। सो ये सारे फैक्टर्स है कि जनता को ये पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है। तो जैसे टॉपिक आया था भगत सिंह जी का, तो भगत सिंह जी के पहले कोई भगत सिंह जी नहीं थे, वो खड़े हुए, उन्होंने क्रांति लाई, इसलिए आज हम उनका सम्मान करते हैं। तो दैट इज द वे कि अचानक से ही होगा जो रिवोल्यूशन जो होगा, जो पॉलिटिशियंस का हम सोचते कि यार देश का कुछ नहीं हो सकता, लोग ही ऐसे, देश ऐसा ही बन चुका है। तो समवेयर एंड समवेयर वी हैव टू स्टैंड, वी हैव टू मेक दैट फ्रंट कि हमें एक एजुकेशन का बैरियर लाना पड़ेगा कि लोगों को ये अवेयरनेस आए और लोग ये सवाल पूछना चालू करें नेताओं से, तब जाके कुछ बदलाव हो सकता है। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब कि नेता तो ऐसे ही है। अब नेता कास्ट बायस पॉलिटिक्स करता है लोगों को देख के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोस्टली एजुकेटेड लोग इस बात में फेवर करते हैं कि वो अपने कास्ट के पॉलिटिशियन को वोट ड्राफ्ट करे, या वो अपनी जाति के इसको, मतलब
उसमें भी है कि कुछ लोग करते होंगे शायद में भी, बट मोस्ट ऑफ एजुकेटेड पीपल्स वो नो अबाउट बेसिक देयर बेसिक राइट्स, और जिनको पता है कि मेरे काम होने जरूरी है, वो ऐसा नहीं करते। और मुझे जहाँ तक याद है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ एक डिजिटलाइजेशन मीडिया का भी है, क्योंकि पहले जो मीडिया हाउसेज हुआ करते थे, मुझे आज भी याद है, जब इलेक्शन आते थे तो सबसे पहले मीडिया एक रिपोर्ट लाती थी कि करंट गवर्नमेंट विच इज इन पावर, कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया। राइट। तो मैं आजकल के चुनाव जब देखता हूँ तो मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई देती, और इसके बजाय मुझे ज्यादा ये सुनाई पड़ता है कि कहीं पे किसी स्पेसिफिक रिलीजन के बंदे को मॉब लिंच कर दिया, कहीं पे कोई फिल्म चल गई जिसमें कोई नैरेटिव है और उससे रिलीजन के बीच में झगड़ा कर दो। राइट। तो जो डेमोक्रेसी का जो पिलर है, हम जिसे कहते हैं मीडिया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आज हाईजैक हो चुकी है, और वो एक बायस व्यू नहीं दे पा रही है लोगों को कि उन्हें कौन सा नेता सही में चुनना चाहिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आदमी कितना भी एजुकेटेड हो, लेकिन अगर उसे आदत है, अगर वो टीवी देखता है, उसका कोई फेवरेट एंकर है, तो उसका एंकर उसे जो कहेगा वो शायद उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, वो शायद अपने फैक्टर्स को भूल जाए कि मेरा इस पॉलिटिशियन ने मेरा काम नहीं किया, इस पॉलिटिशियन ने मेरे सिटी के लिए कुछ नहीं किया, डेवलपमेंट कुछ नहीं किया, बट क्योंकि मेरा एंकर खड़ा होके बोल रहा है कि फलाना फलाना जगह में तो देखो कि कैसे एट्रोसिटीज हो रही है एक स्पेसिफिक रिलीजन के ऊपर, तो तुमको जरूरी है कि तुम्हारा ये नेता जो रिलीजन को सपोर्ट करता है इसको चुन के दोगे तो ये नहीं होगा। अब अब इसमें ये काफी स्ट्रिक्ट प्रोपेगेंडा, इसमें कौन आएगा? इसमें वही लोग आएंगे कि जिनके पास पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। मुझे लगता है हमारा राइट। जो बेसिक स्टैंड पॉइंट होना चाहिए वो वही होना चाहिए कि लोगों में पॉलिटिकल एजुकेशन। अवेयरनेस आए। राइट। यस, दैट्स ऑल। और आप बता सकते हैं हाँ। इसमें। राइट, राइट, पार्दा, आई वांट टू कम एट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, दैट अविनाश ने अभी जो बोला कि एजुकेशन इज द core part where it is missing from the society. अभी आप देख सकते हो, if you see the data of India, how many percent people pay taxes? Only 2% people of total दैट्स population डायरेक्ट टैक्स who, बाय द वे। हाँ, आई एम सॉरी that टू direct, इंटरजेक्ट। हाँ, direct मैं बता दूं, income जो tax, इनकम टैक्स income है, tax, hmm, income tax. So you can see that there is one report that published by one of the companies where India has been divided in two types, India 1 and India 2. Okay, India 1 and India 2. Majority of the population who are living in metropolitan cities falls in India 1. Okay, no, no, sorry. Majority of people falls in India 2 and minority of people falls in India 1. और हम जो देख रहे हैं, where people who elect those leaders, जिनके साथ विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज और उसका काम देख के किसी को इलेक्ट करना, सो मेजोरिटी ऑफ पीपल फॉल्स इन इंडिया टू। जो इंडिया टू में जो लोग हैं, विच आर फ्रॉम ग्राम पंचायत लेवल अप टू द जिला परिषद एंड ऑल एक्सेट्रा फ्रॉम इंडिया टू। सो ये लोगों में कैसा है, ये लोगों में बहुत सारे बाइफर्गेशंस हैं with the mindset, with the leader perspective. So I don't think it will be going to be changed from so many years कि हम एक mindset change कर सके लोगों का, कि हमें उसी लीडर्स को चुनना है जो काम कर सके। ये माइंडसेट चेंज करना बहुत हार्ड हो जाएगा आई गेस, क्योंकि एजुकेशन ही मिसिंग है इंडिया टू में। Right. सोम की आवाज शायद बंद हो गई है सबके लिए या सिर्फ मेरे लिए? नहीं नहीं, शायद Am I audible? वो हाँ, पॉज भी मेरा हो हो गया। गया, यू कैन, था वो। यस, हाँ, यस, आपकी नहीं, यू कैन ओके, कंटिन्यू। आपकी नहीं। ठीक है। तो मतलब अविनाश भाई ने जो बोला वो बिल्कुल सही, मतलब मैं तो कंकर करता हूँ उसकी बात से, पर मैं कुछ नुआंसेस ऐड करना चाहूंगा। मतलब जैसे वो बात सही है उसकी कि भगत सिंह के पहले कोई भगत सिंह नहीं था। तो सही बात है, जिस प्रकार भगत सिंह ने स्टैंड लिया उस प्रकार शायद ही कोई होगा। पर भगत सिंह के पहले अलग कैरेक्टर्स जिनने अलग अलग स्टैंड लिए वो बहुत थे। मंगल पांडे थे, है ना, फिर और बहुत सारे नाम, खुदीराम बोस थे 1918 वाले, फिर बाद में लोकमान्य तिलक, फिर बाद में जो अनंत लक्ष्मण कन्हेरे वगैरह, उनके मेथड्स तो और ब्रूटल थे। तो वो बात सही है बिल्कुल कि ये हम यूथ को खड़ा होना चाहिए तो चेंज आएगा। पर प्रॉब्लम क्या है सोहम भाई, पता है,
इतने कंडीशंस, इतने ये होते हैं ना, मतलब आप किसी एक सिंगल इवेंट में एक सिंगल कॉज को आप नहीं कर सकते, बहुत सारे कॉजेज होते हैं उसमें। अब जैसे उन्होंने बात की एजुकेशन की, पॉलिटिकल नॉलेज कम है। देखिए, अगर मैं स्टेट बोर्ड का पढ़ा लिखा हूँ, अब बाकी सिविल इसमें भी, सेंट्रल बोर्ड में भी ऐसा होता होगा कि सिविक्स करके एक चैप्टर होता है, उसमें आपको प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पॉलिटिक्स क्या है देश की, जो ब्रॉड, जिसको पॉलिटी कहते हैं, वो समझाई जाती है। हाँ, हालांकि Right. उस समय हमारा दिमाग उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि हम समझ पाए एग्जैक्टली क्या बात हो रही है, बट हमको एक आइडिया लग जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हमारा देश है, ऐसे ऐसे गवर्न होता है। मुझे याद पड़ता है जब मैं 8th 9th में था, तो वो जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो हमको लर्न कराया जाता था बाकायदा। और Hmm. पूरा 1 महीना हमको किसी ना किसी को शाम को भेजा जाता था प्लेज के टाइम पे कि तुम सारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो तुम प्लेज पे बोल के आओ। ये मेरे स्कूल में होता था, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू फॉर एवरीवन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एजुकेशन तो था, पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, मतलब जैसे जो अविनाश भाई ने बोला, बिल्कुल सही बोला, मीडिया हाईजैक हो चुका है। बात सही Right. है, मीडिया बहुत हद तक हाईजैक हो चुका है। जो आइडियल होने चाहिए मीडिया के, कि अनबायस्डनेस है ना, Hmm. इम्पार्शियलिटी, और एंकर का खुद का कोई स्टैंड नहीं होना चाहिए, ये सब अब नहीं दिखता हमको। पर प्रॉब्लम पता है क्या है शुभम भाई, Hmm. उस मीडिया पे भी टीआरपी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि लोगों को वो पसंद कर रहे हैं, लोग वो पसंद कर रहे हैं, लोगों को अपील हो रहा है वो। अब जैसे अगर आप Right. देखने जाए तो एकदम अनबायस्ड चैनल्स भी है, जैसे अभी आप बोल सकते हो ललन टॉप अनबायस्ड थोड़ा बहुत है, बीबीसी एक अनबायस्ड थोड़ा बहुत है, Hmm. एनडीटीवी एक अनबायस्ड चैनल जिसको हम बोल सकते हैं, प्रसार भारती तो खैर गवर्नमेंट का ही माउथपीस है एक तरह से। पर ऐसे और 4 5 है, मतलब 3 नाम गिना है। आप देखना उनकी टीआरपी कम है, आज तक वगैरह जो भी है, इनके टीआरपी ज्यादा है, क्योंकि देखो, मैं वही खरीदूंगा जो मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को अपील कर रहा है, जो दिखता है वो बिकता है, राइट। Right. अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि जो 20 21 की उम्र में आ जाता है ना, उसको दिमाग आ जाता है कि क्या सही है क्या Hmm. गलत है, बट फिर भी ही चूजेस वन ओवर दी अदर। और इसको कुछ Right. बोलते हैं, इसका कुछ टर्म है इंग्लिश में, कुछ बायस बोलते हैं, ये हर देश में Hmm. होता है। तो अब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि इपोक्स होते हैं टाइम के, कभी ग्लोबल लेफ्ट Hmm. डोमिनेट करता है, कभी ग्लोबल राइट डोमिनेट करता है। तो मुझे लग रहा है अभी ग्लोबल राइट डोमिनेट कर रहा है। एजुकेशन, Okay. हम देखो 14 ईयर्स के बच्चों तक का एजुकेशन फ्री है, मतलब कितना उसका प्रभाव हो रहा है मुझे पता नहीं, बट Hmm. एक अच्छी खासी लिटरेसी हम लोगों ने, इंडिपेंडेंस के टाइम Hmm. पे हम बस 14% लिटरेट थे, हम अभी Right. 74% पे है कुछ तो आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अच्छी खासी हम प्रोग्रेस ले रहे हैं, स्ट्राइड ले रहे हैं। बट यही बात है कि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है कि हमको टाइम लगेगा, हम इतने सारे Okay. लोग हैं कि हमको उस स्टेट में पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। और मेरी पर्सनल राय माने तो मेरे को ये 100 साल 200 साल तो अभी भी लगते हैं कि उस एक मेच्योरिटी स्टेट पे जाने के। और वो मैं एक Okay. एग्जाम्स का बता दूं, अभी बिल्कुल सही बात है प्रथम भाई, आपका जो भी, मैं 2 मिनट और लूंगा, आपकी बिल्कुल सही Hmm. बात है। पर आपको एक बात बताऊं प्रथम भाई, वो जो अविनाश भाई ने पॉइंट बोला बिल्कुल सही है, हम पे गवर्नमेंट पे उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सबकी एग्जाम खुद से कंडक्ट कर ले। जैसे जो Hmm. एसएससी के एग्जाम्स है, जिनका अभी इतना ये सब चल रहा है, इनका ऐसा था कि Hmm. पहले गवर्नमेंट कंडक्ट करती थी, बट 2000 उनको समझ में आ गया साल 2000 में कि भाई बहुत ये हो रहा है, मतलब इतनी Hmm. हमारे पे ऑफिस नहीं है, इतने हमारे पे बेंचेस नहीं, इतने हमारे पे तब पेन पेपर पे होती थी। फिर 2000 से उन्होंने प्राइवेट वेंडर्स चालू किए, सॉरी 2014 से उन्होंने सीबीटी चालू की, 2014 से सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके लिए उन्होंने एक Hmm. वेंडर रखा। उसमें फॉल्ट आ रहे थे तो वेंडर चेंज किया, टीसीएस, टीसीएस आया, टीसीएस ने 2018 से 2024 बहुत अच्छे से संभाला। पर अभी जो एडीक्यूटी आया है, देखो अब Hmm. ये ओपन सीक्रेट है कि वो जो उसकी ओनरशिप में स्टेक्स है वो बीजेपी के लीडर्स के हैं। अब उसमें इतने घोटाले हो रहे हैं, मतलब इतना स्क्यूड प्रोसेस से एडीक्यूटी को टेंडर मिला कि ओपन है कि भाई करप्ट प्रैक्टिस है। पर वही Right. प्रॉब्लम है कि हमने, बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, टीचर्स गए, सब कुछ ट्राई कर लिया, धरना दिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, एंड में कुछ नहीं हुआ। जिसकी एग्जाम खराब होनी थी उसकी एग्जाम खराब हो गई, जिसका फ्यूचर खराब होना था उसका फ्यूचर खराब हो गया। और वो जो मूवमेंट थी एसएससी के अगेंस्ट कि भाई तुम क्या कर रहे हो, वो फिजल आउट हो गई। तो ये जो Right. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है देश की, क्योंकि हमारे देश में वैसा ही है, कोई भी इशू आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत गर्म होगा, बट बाद में सब भूल जाएंगे। तो मुझे Right. लगता है ये चेंज होने में बहुत टाइम जाएगा ऐसा। थैंक यू सोम भाई। जब मतलब टीसीएस जब हैंडल कर रहा था, दैट वाज गुड, ही वाज हैंडलिंग वेरी वेल। वेरी वेल। मैंने एग्जाम दिए हैं, मैंने पवई मतलब अलीबाग से पवई जाके रात को सुबह 4 बजे उठ के मैंने वहाँ सेंटर 7 बजे जाके 8 बजे का पेपर देके फिर ऐसा भी किया है। तब टीसीएस ने हैंडल किया है बराबर। बट जब ये जैसा एडिक्विटी जब आए, इन्होंने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया ये चीजों को, तो ये
तुम लोग जब किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हो तो उस पर पूरा एश्योरिटी आना चाहिए कि ये ऐसा पब्लिक करेंगे। और अगर तुम्हारा पार्टी अगर रूलिंग में है तो तुम्हारा तो यू सपोज टू मेक द बेटर देन टीसीएस। इफ तुम्हारा रूलिंग पार्टी इज इन इसमें है इन प्रपोजल, स्टेकहोल्डर इन द एडिक्विटी प्लेटफॉर्म, यस। एग्जैक्टली, एंड हमारे पास कैपिटल की भी कोई कमी नहीं है, फिर किस बात की तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है? तो यहाँ पे करप्शन आते हैं, ऐसी चीजें होते हैं। राइट। करप्शन तो खैर अभी उस इश्यू में दिख रहा है करप्शन, क्योंकि जो टेंडर के जो जो क्वालिफिकेशन है, स्टैंडर्ड था वही कम कर दिया। इतनी सारी चीजें, टेंडर जो जीत रहा है, टीसीएस 2 बार टेंडर जीत गई, दोनों बार कैंसिल करके रिक्वायरमेंट्स कम कर दिए ताकि एडवांटेज हो एडिक्विटी को। टीसीएस फिर भी जीत गई, वो वापस कैंसिल कर दिया टेंडर। फिर बाद में ऐसे रूल्स लाए जिससे वो जो फाइनेंशियल हेड होता है उसका वेटेज ज्यादा हो जाता है आपके पिच में, तो दे दिया। और फिर बाद में जब पिच किया तो एडिक्विटी ने सबसे कम किया, 171 रुपीज का पिच किया, जबकि टीसीएस का 311 आ रहा है। जबकि आप बच्चे से सेम फीस ले रहे हो, उसके एग्जाम की सेम फीस ले रहे हो, तो मतलब यू आर Right. एसेंशियली पेइंग द सेम मनी फॉर एन इंफीरियर सर्विस। और फिर आपने देखा एग्जाम कैसे हुई, भैंस के तबेले में रख दी है ना, स्क्रीन लोड नहीं हो रही है। फिर बाद में बच्चे, सेंटर इतना खराब है कि बच्चों को बैग रखने की जगह नहीं है, फैन नहीं चल रही, टीवी नहीं चल रहा, एग्जाम क्रैश हो रही है। और चीटिंग का तो आपको पता ही है, कुछ ऐसे रिमोट सर्वर मिले के लिए पैसे ले रहे हैं, फिर वहां के आजू बाजू के रूम्स है वो एक्सपेंसिव हो रहे हैं क्योंकि बच्चा रहने की जगह नहीं है, लड़कियां रात रात को ट्रैवल कर रही है। Absolutely. तो यही, और वो जो जो एडिक्विटी ने किया बेसिकली, अब वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप खुद कॉन्ट्रैक्ट लेके 2 कम लोगों को अपना काम नहीं दे सकते। पर वो टेंडर में उन्होंने क्लास ऐड कर दिया, क्योंकि उनपे वो इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं खुद से करने का, कि एंसिलियरी सर्विसेज, एंसिलियरी मतलब कोई भी चीज अनबाउंडेड, कुछ भी आप दूसरों को दे सकते हो। अब टीसीएस जो एग्जाम खुद करवाती है, सब अपना उनका सब कुछ खुद A to Z, यहाँ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपने इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उन्होंने किसी और को सबवेंट कर दिया। ये इलीगल है, मतलब पर सोचो आपने टेंडर में ही चेंज ला दिया कि आप उसको कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये तो समझ में आता है कि करप्शन है। बट वही है यार, डेमोक्रेसी एक पता पता मैंने ना 2 लाइन सीखी है एक हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री इज एनीथिंग व्हाट द विक्टर टेल्स यू। जो जीतता है वो कुछ भी बोल दे, वो हिस्ट्री हो जाता है। और पॉलिटिक्स इज अबाउट, दूसरी लाइन पॉलिटिक्स के बारे में, कि पॉलिटिक्स इज अबाउट चूजिंग द लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन, मतलब जो सबसे कम खराब है उसको तुम चूज कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो। तो या Right. Same situation happened. One of the tendered in Mumbai. I don't know that project, but MMRD and the mega industry and mega engineering and L&T. If you know, that tender was won by L&T, लेकिन वो टेंडर्ड कुछ चीजों की वजह से एलएनटी को बैन किया। एलएनटी गोज टू सुप्रीम कोर्ट आल्सो, बट स्टिल इट डजंट वर्क फॉर देम, और वो गया मेगा इंजीनियरिंग को। मेगा इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड होल्डर इन बीजेपी। सो यहाँ पे गवर्नमेंट खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपने खुद के बनाए हुए लॉस को, जो एट द एंड उन पैसों से, जो पैसे हम जैसे टैक्स पेयर्स पे करके गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होते हैं, एंड दे आर नॉट इवन यूटिलाइजिंग इन अ प्रॉपर वे वेयर दैट मनी गोइंग टू बी फैसिलिटेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया अगेन। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है टुवर्ड्स मेक इन इंडिया एंड द विजन्स दैट इंडिया हैव टुवर्ड्स देयर ओन सेल्फ। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा विद द एग्जाम्स, विद द टेंडर्स, विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मुझे नहीं लगता हम कभी चाइना को बीट कर पाएंगे। अविनाश, कैन यू हैव एनी पॉइंट ऑन दिस? यस, एग्जैक्टली, जैसे पाद भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा। और आपका जो एक पॉइंट था, आपने कहा कि एक ह्यूज गैप है कि जहाँ पे इंडिया बात करता है कि मेक इन इंडिया, and on the other hand we lack the competence in most of the sectors. राइट। तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि why this is because it is true कि हमारी पॉपुलेशन जो है, हम आलसी लोग हैं, इंडियंस आर लेजी पीपल। और जब ये हमें कोई बाहर से बोलता है, कोई बाहर की कंट्री से कोई बंदा ट्वीट कर देता है, कोई सीईओ ट्वीट कर देता है, तो हम उसको ईगो पे ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, हम ट्विटर पे जाके, एक्स पे जाके झगड़ा करते हैं। राइट। बट इट इज ट्रू कि हम स्किल्स में लैक करते हैं, हम नॉलेज में लैक करते हैं,
हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसमें कुछ रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं। एंड व्हाई दिस इज, दिस कम्स फ्रॉम द अपर हायरार्ची कि आपका जो है रिप्रेजेंटेशन एक पॉलिटिकल गोल होता है कि आपको कोई चीज करनी है। जैसे स्कूल का आपका इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो गया या कोई भी आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट हो गया, आपको वो करना है। नाउ यू हैव टू मेक अ फाइल। तो उस फाइल में वो प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना, ये एक पॉलिटिकल गोल हो गया। हर ग्रुप के पास एक फाइल होती है, हर ग्रुप का प्रेजेंटेशन रेडी होता है। ऑन पेपर इट लुक्स लाइक एवरीबडी नोज एवरीथिंग। इन रियलिटी वी लैग इन competency बिकॉज competency इज इकोनॉमिकल गोल। क्यों? क्योंकि आपको रिसोर्सेस लगेंगे, आपको एक्चुअली नॉलेजेबल होना पड़ेगा, आपको एक्चुअली रिसर्च करना पड़ेगा। यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, यू हैव टू बियर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके पास वो सब होना चाहिए, राइट? आपकी इकोनॉमिकल स्थिति भी होनी चाहिए कि आप वो सब उतनी बार ट्राई भी तो करें। क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, आप उसमें लर्न ही नहीं कर पाएंगे कुछ। तो इससे आसान है कि हम किसी का होमवर्क कॉपी करें, उसको प्रिंट करे और जाके प्रेजेंट कर दे स्टेज पे। अब स्टेज पे बंदा सूट बूट टाई पहन के बोलेगा माइक के सामने, तो नीचे बैठी ऑडियंस सब सुनेगी उसको। तो वो रिप्रेजेंटेशन हो गया। मोस्ट ऑफ इंडिया इज व्हाट डूइंग टुडे कि हम बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस मार्केटिंग। करना है, जाके कर दिया, खत्म। हमने किसी ने उसका होमवर्क नहीं किया, हमारे पास वो स्किल्स नहीं थे कि क्यों करना है, कैसे करना है। और जब तक ये ऐसी टेंडेंसी रहेगी, जब तक इंडियंस हम लेजी रहेंगे, हम खुद से मेहनत नहीं करेंगे, हम कॉम्पिटेंसी में एक्सेल नहीं करेंगे, तब तक हम रिप्रेजेंट ही करते रहेंगे, हम चाइना से पीछे ही रहेंगे और ये गैप बना ही रहेगा। द एक्चुअल गैप कि ये कब खत्म होगा, जब हम खुद अपने हाथ में ले कि नहीं मुझे करना है ये प्रोजेक्ट। एंड नाउ मुझे ये करना है। मेरे पास 1 साल लगे, 2 साल लगे, मेरे पास एक पॉलिटिकल टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज कि इस सरकार को मार्च फरवरी के बजट में दिखाना है, इसलिए कुछ भी एक रिप्रेजेंटेशन कुछ दिखा दिया कि फलाना फलाना यूनिवर्सिटी समथिंग हैज डन दिस एक्सेल वर्क इन अलॉटेड बजट एंड ऑल। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप रिप्रेजेंटेशन में जाओ, फिर वो प्रोजेक्ट फेल ही होगा आपका। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स फेल इन इंडिया। और जैसे अब मैं एक ये दूंगा, एक एआई समिट हुआ दिल्ली में जस्ट कुछ दिनों पहले। तो आई डोंट नो इफ यू ऑल पीपल आर अवेयर ऑफ इट। एक गालगोटिया यूनिवर्सिटी थी, इट्स एक्चुअल नेम इज गालगोटिया यूनिवर्सिटी। व्हाट दे डिड कि उन्होंने एक चाइना से बनाया हुआ रोबोट खरीद लिया एंड दे प्रेजेंटेड ऑन देयर नेम कि लाइक हमारे स्टूडेंट्स ने ये बनाया है इसको। एआई समिट में, ऑन एआई समिट, कैन यू गाइस एक्सपेक्ट कि एआई समिट इज इंटरनेशनल वर्ल्ड एआई वाइड। समिट। यस यस, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है वो एक, जहाँ पे फॉरेन से भी डेलीगेशंस आए थे और उन सब ने देखा वो। एंड नाउ इट्स ऑल ओवर द मीडिया कि उन्होंने ऐसा किया है कि दे जस्ट बाय इट फ्रॉम द चाइना एंड रिप्रेजेंटेड एज देयर ओन। सो हाउ शेमफुल इट इज फॉर अ कंट्री लाइक अस। सो दैट इज द Right. पार्ट। ये गैप तब तक रहेगा जब तक हमें इस बात की एक्चुअल में जरूरत नहीं महसूस होगी कि दैट वी हैव टू डू समथिंग एक्चुअली rather than just to represent myself. This is the main point, I think. एब्सोल्युटली। और Right. एक बात ऐड करना चाहूंगा, मतलब आप झूठ भी बोलो चलो ठीक है, पर वो इतना एक्सट्रीम झूठ बोलती है 350 करोड़ रुपए खर्चे किए हमारे इंस्टीट्यूट ने तो 2 लाख रुपए का मिलता है ऑनलाइन कुत्ता तो फिर उल्टा आ गया, और Right. उल्टा आया ना उनपे, तब भी एक्सेप्ट नहीं किया उसने। we, वो we should ask her कि 350 करोड़ कहाँ से आए। एग्जैक्टली भाई, इतने तुम्हारे बच्चे हैं भी क्या कॉलेज में 350 करोड़? Yes. और And इनफैक्ट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। जब उसको कन्फ्रंट किया रिपोर्टर्स ने, वो फिलोसॉफिकल आंसर देने लगी। समवन 6 कैन बी समवन एल्सेस 9। अरे तेरा कुत्ता तो चाइना Your से six आया है can be my nine. तेरा कुत्ता तो चाइना से आया है, ये 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, क्या है, क्यों है? तो ये प्रवृत्ति है actually, भाई, ये मैं भी समझता हूँ। मतलब ना हम लोग स्ट्राइव नहीं करते एक्सेलेंस के लिए, मेरे को ऐसा लगता है hmm, शुभम भाई। और जब उससे पूछा गया तो दैट प्रोफेसर आल्सो एडमिट्स कि वो एआई की प्रोफेसर नहीं है, वो प्रोफेसर थी कम्युनिकेशन की, उसने खुद से कहा। तो एआई समिट में कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही है प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन रादर देन प्रोफेसर ऑफ एआई। ये भी yeah, मेरी बात को कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि हम बस रिप्रेजेंटेशन के पीछे है, हमें कुछ नॉलेज से स्किल से लेना देना नहीं है। हम right. मार्केटिंग के पीछे हैं। हम बस मार्केट करना जानते हैं। मेरे को भी वही लगता है यार। मतलब मैंने कहीं Right. देखा था, कोई कंपैरिजन देखा था, चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना दिया है, चाइना ने Hmm. बेसिकली एक
क्रिस्पर मेथड से कैंसर का ऑलमोस्ट एक क्योर ढूंढ लिया है, कोई एक पर्टिकुलर कैंसर है। चाइना बेसिकली फोटॉन्स का नेचर चेंज करने का ये कोई टेक्नोलॉजी बना रहा है, मतलब ऐसे एकदम एडवांस्ड चीजें। और वो मीम देखा था मैंने और वो मीम के नीचे इंडिया में दिखाया था, एक छोटा बच्चा ना मोदी मोदी करता रहता झंडा लेके उसको दिखाया था इंडिया क्या कर रहा है। एक्चुअली हाँ मतलब मुझे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि लाइक इंडिया हैज डेमोक्रेसी एंड इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जहाँ पे डिक्टेटरशिप है वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को थ्रू द डिक्टेटरशिप बहुत आगे लेके गई है। यू कैन सी द चाइना। ओके, सो हम लोग कैसे डेमोक्रेसी होके भी हम लोग पीछे हैं एंड उनके यहाँ डिक्टेटरशिप है, वो लोग इतने आगे हैं। व्हाट्स द एक्चुअल गैप बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड द डेमोक्रेसी? ये मेन रीजन क्या है, डिफरेंस क्या है? अच्छा मैं बोलूंगा बन इस पे रही आप है, इंडिया अविनाश भी का, धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ ही जा रही है। मैं बोल रहा हूँ इस पे अविनाश का व्यू लो, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। बट मैं आपको पहले ही बता दूं, आपका चैनल शुरू होने के पहले बंद होने का रिस्क है। बोलो अरे अविनाश हम भाई। लोग तो नहीं, आई थिंक यू गाइस वो किसी हैव और दैट दिन के लिए डिबेट। छोड़ते हैं। उसमें एक अलग से 2 घंटे की डिबेट हो सकती है, उसको एक किसी चले और आज दिन के लिए चले आज छोड़ते हैं। चले। श्योर 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 हाँ श्योर। मतलब ब्रीफ में ही बता दो अगर आप चाहो तो। No, we can have that in another video. So, but I will again refresh our conversation uh, towards one point कि अभी जो आपने मुंबई में हुआ देखा मेट्रो लाइन के साथ, one of the metro line part that fall, the three were injured and one were died, and that Satyajit Salvi was suspended by our CM. So, like ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे, इसके बाद बहुत सारी चीजों में लाइक बहुत सारी चीजों में आंख खुल जाती है लोगों को। इफ यू कैन सी अटल सेतु, जो अटल सेतु अभी बना है, इफ यू नो दैट अटल सेतु कॉन्ट्रैक्टर वाज फाइन्ड फॉर 1 करोड़ ड्यू टू द पोथ होल्स दैट अगेन। सो अटल सेतु अभी बना नहीं है और उसके ऊपर बाद में खड्डे आ गए और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर वापस से 1 करोड़ का फाइन मार दिया है MMRD ने। सो ये ऐसे चीजें होते हैं हमारे यहाँ और फिर हमारी आंख खुलती है। इज देयर डजंट वी डोंट हैव एनी प्रिकॉशंस कि हम लोग ऐसा इंफ्रा में डील करें जो लोगों के लिए एश्योरिटी हो, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस। हम जैसे अगर ऐसे टेंडर सिस्टम जो ऐसे फालतू कंपनी को देते रहे और वो कंपनीज ऐसे मनी को इस तरीके से यूटिलाइज करे, एट द एंड जो नुकसान होता है वो लोगों का होता है, राइट? वी आर ब्लाइंडली ट्रस्टिंग ऑन गवर्नमेंट। अगर मैं कमा रहा हूँ, मेरे पैसे से कुछ हिस्सा जा रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इट शुड बी यूटिलाइज प्रॉपरली। एट द एंड हमारे साथ ये हमेशा अभी नहीं, इफ यू कैन सी मेनी ऑफ द रिपोर्टर्स इन ऑल ओवर इंडिया विच अनेबल्स द ट्रूथ ऑफ दिस काइंड ऑफ स्कैंडल, वो हमेशा कहीं ना कहीं जाके किधर तो भी ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर वो कहीं गायब हो गए एंड ऑल। सो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो इंडिया को हमें सप्रेस कर रही है आगे जाने के लिए। सो यू कैन हैव दैट मेरा इस पे एक पॉइंट। व्यू है, अगर मतलब प्रथम भाई बोले नहीं उनके बाद मैं बोलूंगा। बोलिए यस बोलिए। प्रथम। प्रथम आप बोलना चाहेंगे या मैं बोल लूं या अविनाश पहले बोले? आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, कंटिन्यू, बात कंटिन्यू। शुभम भाई पता है मेरा क्या व्यू है इस पे? जो डिटरेंस होता है ना, डिटरेंस बेसिकली एक मतलब एक होता है कि आप इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स कर दो और एग्जाम्पल बना दो लोगों को जिससे ना वो करप्शन करने से डरे। अब जैसे मैं चाइना के एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करता हूँ, 2012 में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, मतलब 7 से लेके 24 के बीच में था। 2012 के बीच में उसके स्कैम सामने आए। द टोटल वैल्यू ऑफ द स्कैम, द साइफंड मनी फ्रॉम द पब्लिक वाज $38 मिलियन US डॉलर्स, $38 मिलियन। और उसको डेथ सेंटेंस मिल गया लास्ट ईयर, अभी एक्सिक्यूट भी हो जाएगा कुछ टाइम से। मतलब डेथ सेंटेंस मिल गया $38 मिलियन ये करने का, उसको करप्शन करने का। और
ऐसा मतलब मैंने वो थोड़ा सा पढ़ा उसके बारे में, तो जज एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि तुमने लोगों से चुराया है, तुमने लोगों की थालियों से खाना चुराया है, तुम्हारे कारण जो आगे जा सकते तो पीछे रह गए, और डेथ सेंटेंस। इसका एक आपको काउंटर एग्जांपल देता हूँ भारत में। अगर आप जानते होंगे, कोई एक लालू प्रसाद करके नेता है बिहार का, उसने 565 मिलियन डॉलर्स, मतलब आधे बिलियन के ऊपर, 565 मिलियन डॉलर्स चुराया उसने इससे, लोगों से, बिहार स्टेट से, इतने गरीब राज्य से। उसको क्या सजा मिली? 25 लाख फाइन, 5 साल जेल। तो अगर आपको पता है कि आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कोई फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं है, आपको पता है कि आप अपने बाहुबल पे कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना करप्शन करूं? अब उसका तो फायदा हो गया कि वी आर 25 लाख रुपए फाइन, 5 साल जेल। भाई वो 565 मिलियन डॉलर खाया हुआ आदमी है, $500 million के ऊपर खाया हुआ आदमी है। तो जब तक ये नहीं होता ना भाई, मतलब ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। अभी किसी कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि अगर मैंने रोड बहुत अच्छी बना दी तो अगली बार मैं कॉन्ट्रैक्ट में बिड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टेंडर निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ तो नवी मुंबई जो एरिया है, मैं सिर्फ नवी मुंबई की बात करता हूँ, यहाँ तो जो कट जिसको बोलते हैं, अगर आप सोहम भाई आपको तो पता ही होगा, आप भी इसी क्षेत्र के हो, राइट जो कट है वो तो डिसाइडेड होता है, पीडब्ल्यूडी का कितना कट है, इसका कितना कट है, फिर कितना जाएगा। अगर ऐसा सिस्टम ही है, अगर कोई आरटीआई फाइल भी नहीं कर रहा है, अगर कोई बेसिकली कोई एक्टिविस्ट पीआईएल भी नहीं डाल रहा है कोर्ट में, कोई चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, तो करप्शन तो होगा ही। आप समझ रहे हैं? राइट तो डेफिनेटली। वही बात है, अगेन वही बात आती है कि जैसे अब हमारी जनरेशन है, हम थोड़ी इंटरनेट अवेयर जनरेशन है, हम पे इंटरनेट आ गया, हम पे इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो जैसे जैसे हम आप थोड़े बड़े होंगे और हमारे जैसे और आएंगे, है ना, जनरेशन अल्फा जो अभी उठ रही है वो और आएगी, राइट तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम कम होते जाएंगे। बट अभी हम उस फेज में है कि प्रॉब्लम कम हो रही है, हुई नहीं है, हो रही है। हम उस फेज में, ऐसा मेरे को लगता है। ओके थैंक यू। प्रथम ये जो ये रोड्स बन रही है या फिर जो करप्शन हो रहे हैं, ये इतनी लार्ज स्केल पे हो रहे हैं। जो अभी रिसेंटली एक मुंबई में अभी भाईंदर की इधर एक ब्रिज बना, जो एक सिंगल लेन में बड़े लेन में जा रहा है, सडनली वो सिंगल लेन बन रहा है। देखा रहेगा, वो एक बिहार में एक 90 डिग्री वाला टर्न, जो ऐसा सर्कल में होना चाहिए और डायरेक्टली 90 डिग्री, मतलब भाई वो तोड़ के आगे जाए। मतलब किसको तुम, वेंडर को या कौन से इंजीनियर को कर रहे हो तुम हायर, और तुम लोग ये नेशनल रोड बना रहे हो, ना कि किसी गली का रोड बना रहे हो। वो राइट बन रहा है, वो बिल्ट हो रहा है, तब भी नहीं कोई देख रहा है, ना कोई उस पे देख रहा है। वो पूरा बिल्ट हो रहा है, 100% राइट वर्क हो रहा है, उसके बाद तो कैसे हो रहा है यार? कोई किस पे कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। जो अभी अभी जो इंसिडेंट हुआ मुंबई में, जिसका फैमिली गिरा, फैमिली को 15 लाख से 25 लाख का कुछ तो ये दिया कंपेंसेशन, और जो कंपनी जो वेंडर थी उसके ऊपर फाइन लगाया समथिंग 650 करोड़ का अराउंड समथिंग। मतलब फैमिली को कितना दिया? नथिंग, उसका कुछ दिया नहीं। और एक बीच में एक यूएस का एक्सीडेंट का है, यूएस में एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, उसके फैमिली को वो जो टक्कर मारी थी वो पुलिस वाले ने मारी थी, उसके फैमिली को जो कंपेंसेशन दिया वो 236 करोड़ का दिया था, 236 करोड़ का। वो एक राइट लड़की के एक्सीडेंट के ऊपर उसके फैमिली को दिया गया। और यहाँ पे क्या सिस्टम है? पंद्रह ये लाख जो है 15-25 लाख। ये ये जो सीन है लाइक ये वी डोंट हैव दैट मच नो रिसोर्स टू नो दिस ऑल थिंग्स कि ये कंपनसेशन का कैसा सिस्टम है इंडिया का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ऑल दिस सिनेरियोज जहाँ पे भी करप्शन होता है वहां पे लोगों का पैसा लगता है। लोगों ने हार्ड अर्न किया हुआ मनी जो गवर्नमेंट के पास एक्युमुलेटेड है वो यूटिलाइज होता है। वो यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो रहा है और हमेशा इस सिस्टम का एक फिक्स ये हो गया है कि हमेशा कहीं ना कहीं उसका वो जो कट है पैसे का वो चलता ही रहेगा। ये मिनिमाइज होना बहुत हार्ड है। लेकिन एक बहुत एक ऑब्जर्वेशंस बोलो या फिर एक मैं पॉइंट उठाना चाहूंगा। सपोज एक एक टाउन का एमएलए है, एक एमएलए अगर बन रहा है, उसकी आई गेस फॉर द यू मस्ट नो दैट हाउ मच सैलरी दे गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, 1,20,000 या 30,000, राइट? या अगर कोई या इलेक्टेड या इट इज एमएलए एन या इलेक्टेड एमएलए अगर उसको सैलरी डिसाइड है 1,20,000 1,30,000, तो उनके पास
डेढ़ 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेने के लिए कहाँ से पैसा आता है? Like if you can see, he is an salaried person for public, और उसका सैलरी डिसाइडेड है गवर्नमेंट के साथ। अगर 2-3 करोड़ की गाड़ी लेने की कैपेसिटी है, इनके पास इतनी संपत्ति रहती है, इतना अमाउंट ऑफ मनी रहता है, प्रॉपर्टीज रहती है, ब्लैक में वो रिपोर्ट कितना करता है ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, बट दे हैव लॉट ऑफ मनी, even an MLA. So अगर कोई, if you can if you can put your myself in, if you can put yourself in others shoe, that कि अगर किसी को 2 लाख रुपए पर मंथ भी सैलरी है और आप 2 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए जाओ, तो भी आपके पास सीधा बैंक वाले आएंगे, इनकम टैक्स वाले आएंगे कि हाउ, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस मनी? सो ये मैं क्वेश्चन उठाना चाहूंगा कि ये क्या सीन है। लोगों को पता है कि गवर्नमेंट इनको सैलरी दे रही है, लेकिन ये एमएलए परसों जाके 3 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, घर बांध बांध रहा है, बंगला 20-20, 30-30 करोड़ के। सो लोग, ये सिस्टम क्या है? वहां पे क्यों नहीं इनकम टैक्स आ रही? वहां पे ईडी क्यों नहीं आ रही? सो आई गेस पार्थ, प्रथम, अविनाश, यू कैन हैव अ पॉइंट ऑन दिस। बेसिकली शुभम भाई, मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये क्या है सिस्टम। पहले कैसे हुआ होता था कि जो पार्टी पावर में है, दैट यूज टू डू करप्शन, वो करप्शन करे, एंड जो अपोजिशन है वो उसको फाइंड आउट करे करप्शन को कि इसमें घोटाला किया। फिर वो बाहर आता था मीडिया में, फिर देन पब्लिक उसके खिलाफ आवाज उठाती थी, देन प्रोसिक्यूशन चलते थे, सबूत इकट्ठा होते थे, देन कन्विक्ट होता था। नाउ विद प्रॉब्लम विद द करंट गवर्नमेंट इज कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस सिटिंग इन पार्लियामेंट, यू सी, तो मोस्ट ऑफ उसमें अगर आप देखोगे 30-40%, दोज आर द पीपल हु वेर द बिगेस्ट अपोजिशन लीडर अगेंस्ट द बीजेपी, जो सबसे तीखी बात करते थे अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट। दोज पीपल आर सिटिंग इन अलायंस। सो व्हाट द थियरी हियर इज, जो मेरा अपोज करे, जो मेरे सीक्रेट्स बाहर लाए, मैं उसको ही अपने साथ शामिल कर लूं, उसे एक परसेंटेज दे दूं। आई गिव हिम परसेंटेज आइदर इन फॉर्म ऑफ मनी, आइदर इन फॉर्म ऑफ एसेट, और मैं उसे शायद पॉलिटिकल पार्टी में ही एक जगह दे दूं, वो मेरे साथ आके बैठे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जनता को बेवकूफ बनाना इजी हो जाता है थोड़ा, कि आपके अगेंस्ट में अपोजिशन ही नहीं बचता है। एग्जैक्टली जी, मतलब मैं एक कुछ 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। शुभम भाई, जो हमारा मतलब जो एमएलए होता है ना, वो टेक्निकली और लीगली ही मतलब वो अपना खुद का भी बिजनेस कर सकता है वाइल बीइंग एन एमएलए। इनफैक्ट कोई फर्म का पार्टनर भी कर सकता है, कोई प्राइवेट बिजनेस भी कर सकता है। हाँ, गवर्नमेंट में कोई और पोजीशन हेड नहीं कर सकता, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन, पर वो खुद का बिजनेस कर सकता है। तो ये जो मोस्टली जो एमएलए वगैरह होते हैं ना, इसी चीज का फायदा उठाते हैं। कोई बिजनेस चालू रहेगा इनका साइड का, पैसा एम्बेजमेंट करके आएगा शेल कंपनी से, कोई उसको बोल देंगे कि हमारे बिजनेस का पैसा है। और आपको पता है कि कंपनी में, मतलब अगर आप अच्छे खासे लेवल पे हो तो घपला करना इतना कोई बड़ी बात नहीं होती कंपनी के फाइनेंस में, है ना? तो वही बात है कि मतलब ये ऐसा लूप होल है हमारे इसमें कि एमएलए रह के भी आप दूसरे काम कर सकते हो और आप दिखा सकते हो कि गाड़ी मेरी इस पैसे से आई है। बट आफ्टर 2014 पाथ भाई, अचानक सडनली देश बहुत पॉलिटिकली राइट हो गया है। मतलब करप्शन हो ही नहीं रहा, मतलब कोई न्यूज में आता ही नहीं है कि कुछ करप्शन हो रहा है। नहीं, देखिए, बंद ही करप्शन हो गया है बिल्कुल, करप्शन इंडिया में से गायब ही हो गया है। हाँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर ना आप हिमालय के सामने, मेरे घर का सामने का द्रोणागिरी पहाड़ रखोगे ना हिमालय के सामने, तो पहाड़ ऐसे छोटा लगेगा, पर है वो बहुत अच्छा खासा बड़ा। तो प्रॉब्लम वही है कि जो हमारी पुरानी सरकार जो थी इस कांग्रेस की, वो इतना बड़ा हिमालय खड़ा करके गई थी करप्शन का, कि हमको लगता है जो चलो ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, उससे तो कम ही है। आप समझ रहे हो हमारे स्टैंडर्ड कितने लो हो गए हैं। तो बट आपको जो प्रोपगेशन का जो रेशो जो है, आपने जो रेशो बताया कि द्रोणागिरी से हिमालय यहाँ पे, तो मैं कहीं पे इनपुट डालता हूँ। मेरा इनपुट क्या हो गया, मेरे देश का जीडीपी हो गया, राइट? और मेरा आउटपुट होना चाहिए जो डेवलपमेंट हो रही है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है हर एस्पेक्ट में। इट्स नॉट जस्ट कि रोड बन रहे हैं जो कि हम खुद ही उस पे टोल दे के
गवर्नमेंट को पैसे दे रहे एनीवेज, वो नहीं, वो प्रोग्रेस नहीं होती, रोड बनना प्रोग्रेस नहीं होती। ओवरऑल एस्पेक्ट में कंट्री की ग्रोथ होनी चाहिए। अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, अगर मेरे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, पहले लाइक 2010 में जितना जीडीपी था और आज जितना जीडीपी, वो यहाँ से यहाँ है, वो भी तो एक हिमालय द्रोणागिरी है, राइट? तो आप कह रहे कि यहाँ से यहाँ जीडीपी चला गया, अब करप्शन भी नहीं हो रहा, पहले करप्शन होता था बहुत ज्यादा, अब करप्शन भी नहीं हो रहा है, पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, करप्शन भी नहीं हो रहा है, तो वो जा कहाँ रहा है? इस हिसाब से तो हम चाइना से आगे चले जाने चाहिए थे। हाँ, अब पता है आपको एक बात बताता हूँ। वो पैसा कोई कहीं पे तो जा रहा होगा, वो हाँ, थोड़ा सिविल कि पैसा गायब तो नहीं हो सकता, एकदम एयर में गायब तो नहीं होगा वो। अगर यहाँ से लोग पैसे दे रहे, जीडीपी बढ़ रहा है, यहाँ से पैसे आ रहे, तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास अगर मेरे कंट्री के 10 पोर्ट थे, तो आज मेरे पास 100 पोर्ट होने चाहिए थे उस हिसाब से। मेरे कंट्री में अगर पहले 22 आईआईटीज थे, तो आज मेरे पास 200 आईआईटीज होने चाहिए थे, एनआईटीज होने चाहिए थे, आईआईएम्स होने चाहिए थे 200। मेरे देश में अगर पहले एक ही इसरो था, तो ऐसे 2-3 सिर्फ एक मतलब श्री हरिवर्धन, वो श्री हरिकोटा, वहां से एक लॉन्च साइट है हमारा, फिर वो एक ही क्यों है? अगर हम इतने सैटेलाइट लॉन्च करें, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उसके लिए बहुत सारी क्यों है, बहुत सारे कंट्रीज है जो अपने सैटेलाइट भेजना चाहते हैं, लेकिन इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो लाइन में खड़े कि 4 साल बाद आपका नंबर आएगा। तो हम ऐसे 4-5 क्यों नहीं खड़े कर देते श्री हरिकोटा जैसे? क्या हमारे पास पैसे नहीं है? जो Right. जीडीपी जो बढ़ रहा है, जो टैक्सेशन, जो हम ज्यादा पैसे गवर्नमेंट को दे रहे हैं, प्रीमियम एट फ्रॉम व्हाट आवर पेरेंट्स यूज्ड टू गिव टू द गवर्नमेंट, और हम जो दे रहे हैं, अब वो करप्शन भी तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट तो एकदम साफ है। न्यूज में तो कहीं पे नहीं दिखाई देता कि करप्शन हुआ, पैसा कहीं से गायब हो गया 1000 करोड़ या कुछ ऐसा, तो कुछ नहीं आ रहा। हाँ, छोटे मोटे करप्शन आते हैं सुनाई देने में, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? मैं ये, इस पे आप थोड़ा कमेंट कीजिए। Yes. हाँ जी। Guys, we have a time constraint. हमारा after 60 minutes meeting will be end. लेकिन yeah, Partha, you can have 1-2 Yeah. minutes. Yeah. हाँ, मतलब बहुत ब्रीफ में बोलूंगा और फिर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन इस पे करेंगे। Yes. मतलब पता है क्या होता है, हमको ना सब चीज ना एक साथ इंटरकनेक्टेड देखनी है। रोड बनना एक्चुअली अपने आप में डेवलपमेंट छोटी है, बट आप देखो कि उस पे गाड़ियां चल सकती है, जिससे उस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, बेसिकली हॉकर्स आ सकते हैं आजू बाजू में, गाड़ियां चल सकती है, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो सकता है, उससे आपका जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो सकती है, अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर है उसको ज्यादा पैसा मिल सकता है, ज्यादा टैक्स भर सकता है, हर चीज ये होती है। मतलब रोड्स एक बेसिक चीज है, फंडामेंटल यूनिट है हमारे देश के इसका, ठीक है। दूसरी बात पता है, ये बात सही है कि कहाँ जा रहा है पैसा, पर आपको एक होलिस्टिक पिक्चर ऐसी देखनी है कि इंडिया की जो जीडीपी जो 10 साल में इंक्रीज हुई है, 10 साल में, वो आप समझो जो पिछले 70 इयर्स में हुई थी, मतलब उससे डबल हो गई, ऑलमोस्ट डबल, तो उसे 4 ट्रिलियन पे आ गए हम लोग, ठीक है। और अगर आप इनकम, रियल इनकम जो जेब में जा रही है, मतलब रियल इनकम इन्फ्लेशन हटा के, तो वो 35% से बढ़ी है। दिस इज अ बिग फिगर, वर्ल्ड में बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है। तो ये बात है। और दूसरी बात ना, मतलब अगर हम देखो, हर चीज का एक बजट होता है ना, हम चलो वो बात सही है कि ऐसा एक और स्पेस सेंटर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर आप खुद अपनी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो ना, 10 साल पहले क्या थी, अभी क्या है। 10 साल पहले का आदमी कम टेक्नोलॉजिकल ये था, एडवांस था, एज अपोज टू हम पे जितनी टेक्नोलॉजी है 10 साल पुराने आदमी पे नहीं होती थी। हम पे जितना अच्छा एजुकेशन अभी है 10 साल पहले नहीं होता था, जितने अच्छे स्कूल अभी कर दिए उतना 10 साल पहले नहीं होता था। जितना हमारे जो मीडिया खुल गए हैं आजू बाजू, या जितने हमारे पे अपॉर्चुनिटी 10 साल पहले नहीं होते थे। अब वो बात सही है कि मतलब स्कैम हो रहे, देखो एडिक्विटी का तो सामने स्कैम है। बट ये सब जो ग्रोथ है बात भाई, ये तो कमर्शियलाइजेशन का ही नतीजा है। We have only few seconds. From that, our meeting will gonna end automatically. Thank you, Avinash. Thank you, Parth. Thank you, Pratham, for joining. Thank you. I will upload this. Yeah. I will share some points to like you can go through with this. Okay. Yes. Bye. Have a nice day. Rest of the day. Bye. Yes. Thank you. भगाने का तरीका कैजुअल है, पर चलो ठीक है, बाय। Bye. चलो भाई, थैंक यू फॉर हैविंग अस। Yes, bye guys. Bye.